खबर आने वाले दिनों में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की डायरेक्शन को तय कर सकती है। खबर अमेरिका से, जहां ट्रंप और जेलेंस्की आपस में भिड़ गए। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में, जहां आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति और विदेशी मेहमान मीडिया से मुखातिब होते हैं, वहीं पर शुक्रवार को ऐसा नजारा दिखा जो किसी ने भी पहले नहीं देखा होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जैसे ही ट्रंप की तरफ से आए सीज फायर के सुझाव को नकारा, माहौल गर्मा गया। जेलेंस्की ने सीधे सीधे कह दिया कि वो किसी भी हाल में पुतिन के साथ समझौते को तैयार नहीं, जिस पर ट्रंप भड़क गए और उन्होंने यहां तक कह दिया कि जेलेंस्की तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। माहौल इस कदर तल्ख हो गया, ट्रंप ने जेलेंस्की को वापस जाने के लिए कह दिया और आखिर में नतीजा ये हुआ कि जिस डील पर पूरी दुनिया की नजर थी, उसके बिना ही जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से बाहर आना पड़ा। Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's exactly Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's backed you far more than a lot of people said they should have. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. With guarantees. Because you get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire. What they think. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards, but without us, you don't have any cards. और इस बहसबाजी से जुड़ा एक और खबर है। बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप भाषा की मर्यादा भूल गए। जी हां, ट्रंप ने मीडिया के सामने ही जेलेंस्की को मूर्ख कह दिया। जब ऑफर पर जेलेंस्की ऐतराज जताने लगे तो ट्रंप ने उन्हें टोका, मूर्ख राष्ट्रपति कह डाला। जबकि जेलेंस्की कहते हैं कि अगर मुझे बुलाया गया है तो कम से कम मुझे बोलने का मौका तो दिया जाए। If you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No, you've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks you haven't in been this allowed. cabinet. You haven't been allowed. In this cabinet. We gave you, through this stupid president, $350 billion. We gave you military equipment, and you men are brave, but they had to use our military. What about if you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days. This is something maybe new. less. If you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, you haven't been allowed. We gave you, through this stupid president, $350 billion. We gave you military equipment, and you men are brave, but they had to use our military. What about if you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days. This is something maybe new. less. ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बातचीत तकरीबन 45 मिनट चली, जिसमें से आखिर के 10 मिनट में बनती बनती बात बिगड़ गई। अब आपको बताते हैं कि आखिर बातचीत बहस में कब और कैसे तब्दील हो गई। दरअसल ओवल ऑफिस में ट्रंप और जेलेंस्की के साथ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी मौजूद थे, जिन्होंने जेलेंस्की को सलाह दी कि जंग को कूटनीति के जरिए खत्म किया जाना चाहिए। कूटनीति सुनते ही जेलेंस्की का पारा चढ़ गया और उन्होंने रूस पर सीज फायर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए
पूछ डाला कि आखिर अमेरिका किस कूटनीति की बात कर रहा है। जेलेंस्की के तल्ख अंदाज के बाद माहौल पूरी तरीके से बदल गया और फिर इसमें ट्रंप भी कूद पड़े। In 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed him with gas contract. Gas contract. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Count one. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring people, you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? We have problems. And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. और अब जरा इस बात को समझिए कि ऐसा नहीं है कि शुरू से ही माहौल तनाव भरा था। इस मुलाकात पर दरअसल पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी और शुरुआत भी गर्मजोशी की तस्वीरों से ही हुई। खुद ट्रंप ने जेलेंस्की को व्हाइट हाउस के बाहर रिसीव किया, लेकिन फिर अंदर जैसे ही बातचीत शुरू हुई तो पिक्चर बदल गई। गर्मजोशी गर्मा गर्मी में बदल गई और आखिर में बिना किसी समझौते और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जेलेंस्की को यूं ही व्हाइट हाउस से वापस आना पड़ा। इस मुलाकात का पूरा सार बताता है कि 3 तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और इस पूरे हाई वोल्टेज बहस के बाद जेलेंस्की व्हाइट हाउस से लौट गए, जिस पर बाद में ट्रंप का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका की मदद से शांति के लिए तैयार नहीं है। जेलेंस्की को लगता है कि हमारे दखल से उन्हें बातचीत में बड़ा फायदा मिलेगा। मुझे कोई फायदा नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। जेलेंस्की ने ओवल हाउस में अमेरिका का अपमान किया। जेलेंस्की वापस आ सकते हैं जब वो शांति के लिए तैयार हों। I want it to end immediately. I want a ceasefire now. He says, oh, I don't want a ceasefire. Well, all of a sudden he's a big shot because he has the U.S. on his side. Either we're going to end it or let him fight it out. And if he fights it out, it's not going to be pretty. Because without us, he doesn't win. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. अब आपको बताते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप इस मीटिंग में जेलेंस्की से आखिर चाह क्या रहे थे। दरअसल अमेरिका यूक्रेन के साथ खनिज भंडार को लेकर समझौता करने वाला था, जिसके जरिए यूक्रेन के खनिज भंडार पर अमेरिका का आंशिक अधिकार हो जाता। इस समझौते के जरिए ट्रंप की यूक्रेन की मदद में हुए खर्च की भरपाई करना भी था और इन सब के साथ कोशिश जेलेंस्की को युद्ध विराम के लिए राजी करने की थी, जो आखिर में नाकाम साबित हुई है।
तो आज का दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर बहुत भारी पड़ा है। वाशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप ने जेलेंस्की से दो टूक कह दिया कि पुतिन को हराना नामुमकिन है, और इधर दूसरी तरफ पुतिन के एक बेहद करीबी ने नेटो को धमकी दे दी है कि अगर ट्रंप और पुतिन की वार्ता के बीच में नेटो रोड़ा बना तो फिर रूस इस धरती से नेटो का सफाया कर देगा। इस धमकी बाद से कई मोर्चों पर जंग तेज होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। धरती से मिटा देंगे नेटो, पुतिन का खौफ, वॉशिंगटन में जेलेंस्की। रूस यूक्रेन जंग में बाजियां तेजी से पलट रही हैं। जो जेलेंस्की लगभग हर दिन जंग जीतने का दावा कर रहे थे, वो जेलेंस्की आज वॉशिंगटन में भीगी बिल्ली बनते नजर आए। हम आपको यूक्रेन युद्ध से जुड़ी 3 बड़ी खबरें दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पुतिन और ट्रंप के ट्रैप में फंसकर राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका को यूक्रेन के 50% से ज्यादा दुर्लभ खनिज देने को तैयार हो गए हैं। साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पुतिन के कारोबारियों और कमांडरों ने ऐलान कर दिया है कि अगर पुतिन और ट्रंप की शांति वार्ता को नेटो या यूरोपीय देशों ने नुकसान पहुंचाया तो रूस धरती से नेटो का नामो निशान मिटा देगा। इधर ISW की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चाहे नेटो या फिर यूरोपीय संघ, अब कोई भी यूक्रेन से रूस का कब्जा नहीं हटा पाएगा। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पुतिन 10 लाख से ज्यादा यूक्रेनियों को रूस का गुलाम बनाने जा रहे हैं। 1011 दिन से ज्यादा की यूक्रेन जंग में अब राष्ट्रपति पुतिन पूरी तरह से हावी हो चुके हैं। हालात यह है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और जर्मनी के चांसलर रहे ओलाफ शॉल्ज वॉशिंगटन में ट्रंप से मीटिंग करने के बाद पूरी तरह से खौफ में आ चुके हैं। ट्रंप ने मीडिया के सैकड़ों कैमरों के सामने जता दिया कि पुतिन मेरा यार है, बाकी सब बेकार है। ट्रंप की इस कूटनीति ने यूरोपीय और नेटो देशों को हक्का बक्का कर दिया है। हालात यह है कि अब 30 यूरोपीय देश ये मानकर चल रहे हैं कि ट्रंप पूरे यूक्रेन पर पुतिन का कब्जा करा सकते हैं। इसलिए अब नेटो और यूरोपीय संघ कोशिश में जुटे हैं कि पुतिन और ट्रंप के बीच यूक्रेन युद्ध पर होने वाली शांति वार्ता फेल हो जाए। रूस को इस साजिश की भनक लग चुकी है और अब पुतिन के बेहद करीबी माने जाने वाले व्लादिमीर सोलोवियोव ने ऐसी धमकी दी है जिसे सुनकर यूरोपीय संघ और नेटो के होश उड़ जाएंगे। जरा देखिए रूस में टीवी होस्ट और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रमुख सहयोगी व्लादिमीर सोलोवियोव ने क्या धमकी दी है। इधर दूसरी तरफ यूक्रेन से 7,880 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन में घबराए और मुरझाए जेलेंस्की को पुतिन प्रेमी ट्रंप का सामना करना पड़ा है। तस्वीरें गवाह हैं कि जेलेंस्की को एहसास हो चुका है कि अब यूक्रेन को न सिर्फ रूस रौंद रहा है बल्कि अमेरिका भी यूक्रेन के दुर्लभ खनिजों को लूटने में जुट गया है। ट्रंप ने जेलेंस्की पर इतना ज्यादा दबाव बना दिया है कि वो चाहकर भी अमेरिका को रूस के खिलाफ नहीं कर पाएंगे। ट्रंप ने महज 3 दिन में ही जेलेंस्की को बिना चुनाव का तानाशाह से लेकर यूक्रेन जंग का जिम्मेदार तक कह चुके हैं। जरा देखिए क्यों इस वक्त नेटो के साथ साथ यूक्रेन तक ट्रंप के बयानों से खुद को हारा महसूस कर रहा है। ट्रंप के डबल बयानों से जेलेंस्की तक चकरा गए हैं। A dictator without elections, Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Got to move fast because that war is going in the wrong direction. In the Do you still think that Mr. Zelensky is a dictator? Did I say that? I can't believe I said that. Next week. दूसरी तरफ ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका यूक्रेन के 50% दुर्लभ खनिजों पर अपना दावा ठोक रहा है। यानी यूक्रेन को इस वक्त रूस और अमेरिका